سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز آج ایک ایسے موضوع سے کرنے جا رہی ہوں جو ہماری ثقافت کا کبھی حصہ ہوا کرتا تھا، ثقافت جو ہم بھولتے جا رہے ہیں، ہماری ثقافت، ہمارے رنگ، ہمارے تہوار جو ہم سے اب روٹ سے گئے ہیں۔ پہلے جب ہمارا بچپن تھا، ہم چھوٹے تھے تو تہوار ہوا کرتے تھے اور لوگ اس کو بڑے زور و شور سے منایا بھی کرتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے جو ہے وہ جنریشن نیکسٹ آ رہی ہے، یا آپ اسے جنریشن زی کہہ لیں، ویسے ویسے ہمارے بعد آنے والی جو جنریشن ہے وہ شاید اس طرح ان تہواروں سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہے، یا انہیں اس طریقے سے وہ تہوار دیکھنے کو نہیں مل رہے، کیونکہ بہت سارے تہواروں پہ پابندی لگ گئی، ان کا غلط استعمال کیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں، ہر چیز جو ثقافت سے ریلیٹ کرتی ہے اس کا صحیح یا غلط استعمال دونوں ہی طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں بسنت کی بات کروں تو بسنت جو ہے وہ کئی سو سال پرانا ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا، اور مسلسل جو ہے وہ مستقل چلتا آ رہا تھا، لوگ اس کو جو ہے وہ زور و شور سے مناتے تھے۔ یہ ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں، میں کوئی اس کے حق میں نہیں ہوں، یا میں کوئی گڈیاں اڑانا نہیں چاہتی، یا میں نہیں چاہتی کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پتنگ بازی شروع کر دیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ رنگوں سے زندگی بنتی ہے، رنگوں سے زندگی کا امتزاج ہے۔ آپ کے موڈز کے ساتھ بھی، یہ موڈ سوئنگز بھی آپ کے رنگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایون جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، جو آپ رنگ پہنتے ہیں، وہ بھی آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جب ہم پتنگوں کے رنگ دیکھا کرتے تھے نا، رنگ برنگے، تو اس سے آنکھیں بڑی ٹھنڈک محسوس کرتی تھی، اور پھر اسی طرح کے لباس پہن کے، لڑکیوں کا چوڑیاں پہن کے اور اسپیشل اس تہوار کو منانا، دیٹ واز ونڈرفل۔ اور وہاں پر اس کے گانے بھی ہونے، کہ ایک مجھے یاد ہے کہ فریا پرویز کا گانا اس وقت آیا تھا، پتنگ باز سجنا سے، مجھے وہ یاد ہے آج جو ہے وہ، یہ مجھے وہ یاد آ گیا گانا، تو وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا، میرے بچپن کا سانگ ہے۔ تو مجھے جو ہے وہ اگر آپ اس کی مطلب ہسٹری میں جائیں تو یہ بر صغیر میں بسنت کا تہوار صدیوں سے جو ہے وہ منایا جاتا رہا ہے۔ اسے مقبولیت 19ویں صدی میں ملی، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس کو منانے کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آزادی حاصل ہوئی، اور اسے شان و شوکت سے جو ہے وہ منایا گیا۔ اس کے بعد یہ امرتسر ہو، قصور ہو، لاہور ہو، بسنت کے فیسٹیول ہر جگہ جو ہے وہ منائے گئے، اور پھر یہ جو ہے وہ بر صغیر پنجاب کی حکومت خاص طور پہ، انہوں نے، انگریزوں نے سکھوں سے اس کو جب چھینا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بسنت فیسٹیول کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں منایا گیا۔ مطلب یہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ قیام پاکستان کے بعد ہی بسنت کا قیام ہو گیا تھا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علاقائی رنگ جمانے کے لیے یا خوبصورتی کے لیے بسنت کا تہوار اس وقت منایا جاتا تھا، لیکن یہ خطرناک اس وقت ہوا جب خطرناک قسم کی شیشہ ڈور آ گئی، وہ شیشہ ڈور جس سے گردنیں کٹنے لگیں، اور اس سے جو ہے وہ بہت سارے حادثات رونما ہونے لگے۔ پھر اس پر پابندی عائد کی گئی اور اسے مکمل طور پر جو ہے وہ بین کر دیا گیا۔ وہ چھوٹی سی خوشیاں جو کبھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے، رنگ برنگے کپڑے پہن کے، وہ پراندے پہن کے لڑکیاں چھتوں پر جو ہے وہ منایا کرتی تھی، یا وہ لڑکے جو گلوں میں دوپٹے لے کر جو ہے وہ بڑے مزے سے خوبصورت رنگ برنگی پتنگیں لے کر ہاتھ میں جو ہے وہ گڈیاں اڑایا کرتے تھے، اس وقت یہ کھیل جو ہے وہ خونی کھیل نہیں تھا، لیکن کچھ شرپسند عناصر ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ بیچ میں ایڈ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ زندگیاں جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہوئیں۔ لوگ بچوں کے گلوں پہ ڈورے پھری، لوگوں کے جو ہے وہ بائک پہ جانے والے لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا۔ مطلب ہمارے پاس اب انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے تو خبر۔ ہم روزانہ اپ ٹو ڈیٹ ہو کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی خبر دیتے ہیں، انتہائی سیریس موڈ ہوتا ہے، شکل پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور جی سیریس رہنا ہوتا ہے، اور آپ کو خبر دے کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہی آپ ٹیلی ویژن ٹیون کرتے ہیں، کسی جگہ پر آپ ڈرامہ لگا لیں تو وہاں پہ آپ کو رونے والے سین ہی جو ہے وہ ملیں گے، عورت رو رہی ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کہیں خوشی نہیں موجود، نہ آپ کے گھر میں، نہ آپ کے دوستوں میں، نہ جو ہے وہ اب تہواروں میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ ہی ہم اب جو ہے وہ اپنے علاقے کے یا دوستوں کو یا پھر جو ہے وہ رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کے لیے کھانے پکاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے بڑے تھے، ہماری امیاں، دادیاں، نانیاں، وہ اتنے بڑے بڑے کھانے پکایا کرتی تھی، مجھے یاد ہے کہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آتے تھے، اور میری امی بہت بڑے بڑے پتیلے جو کھانے کے پکایا کرتی تھی، لیکن جب سے وہ بیمار ہیں تب سے میں نے جو ہے وہ یہ چیزیں اپنے گھر میں جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ شاید میں بھی نہیں کر سکتی، شاید مجھ سے آنے والی نیکسٹ جنریشن بھی یہ سب چیزیں نہیں سنبھال سکتی۔ تو یہ سب چیزیں ہم کھو بیٹھے ہیں۔ یہی تھی ہماری ثقافت، یہی تھا ہمارا وہ رنگ جس نے ہمیں مینٹلی سیٹسفائیڈ کر رکھا تھا۔ ہمارے پاس کچھ کرنے کو تھا، آج ہمارے پاس صرف سننے کو ہے، کرنے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ تو آج اسی پہ بات کریں گے، ثقافت کے رنگوں پہ بات کریں گے، رنگ زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جو تیار کی ہے محمد شہزاد نے، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تو ان سے بات بھی کریں گے۔ بسنت برصغیر پاک و ہند کے علاقے پنجاب کا ایک موسمی اور ثقافتی تہوار رہا ہے۔ برصغیر میں بسنت کا تہوار یوں تو صدیوں سے منایا جاتا رہا، لیکن اسے مقبولیت 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ملی، جب اسے پوری شان و شوکت سے منایا گیا۔ امرتسر، قصور
कसूर और लाहौर में बसंत जोरों शोर से मनाई जाती थी। खूब पतंगबाजी होती, महाराजा खुद पतंगबाजी करते और अवामी मेलों को अपनी शमूलियत से खुशी बख्शते। सियालकोट, गुजरांवाला और गुरदासपुर में बड़े मेले लगते थे जिनमें लोग जोशो खरोश से शामिल होते। बरसगीर में पंजाब की हुकूमत जब अंग्रेजों से ने सिखों से छीन ली तो बहुत सी तमदनी और सकाफती रवायात दम तोड़ गई या मध्यम पड़ गई। ताहम बसंत चूंकि मौसमी त्यौहार था और खास और आम में मकबूल था, इसलिए जिंदा रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद भी बसंत ने इलाकाई रंग जमाए रखा और पंजाब में पहली सरसों के फूटने पर आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे छा जाती थी जो मौसम सरमा से मौसम बहार में दाखिल होने का खुशगवार एहसास दिलाती थी। और फरवरी का महीना रंग बिरंगे फूलों पतंगों से सज जाता था। हर तरफ एक जश्न का समा होता। सन 2000 से पहले तक बसंत एक फेस्टिवल का रूप धार चुका था जिसे बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता था, जिसमें बैरून मुल्क से भी बहुत सारे सयाह भी इसको मनाने के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का रुख करते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस त्यौहार को न जाने किसकी नजर लग गई या कुछ गंदे अनासर इसमें शामिल हो गए कि ये खूबसूरत त्यौहार एक खूनी खेल में तब्दील हो गया। धाती डोर क्या आई कि इसने इस त्यौहार को खत्म करके रख दिया। वो त्यौहार जो बाहर की खुशियां लेकर आता था लोगों के गले काटने पर खत्म हो गया। ख़ास हो, आम हो, कोई मकबूल हो, कोई ना हो, उस वक्त में ये ट्रेंड जो है वो आम हो चुका था और लोग इसको सिर्फ एक इवेंट के तौर पे मनाते थे और खुश होते थे। ये सिर्फ खुशी का एक ज़रिया था, लेकिन ये खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके इवेंट्स जो हैं वो हमसे छीने और फिर उसके बाद जो है वो लोगों के पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो इन इवेंट्स को या फेस्टिवल्स को जो है वो अटेंड कर सकें या वहाँ जा सकें। अब फेस्टिवल होते हैं तो क्या होते हैं कि किसी भी सिंगर का कॉन्सर्ट हो गया तो आज की नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। आप यकीन करें, मुझे जो है वो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां क्योंकि मेरे साथ ही होते हैं और आजकल जो है वो मैं लेक्चर्स भी देख रही हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ जाना होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा यही बताते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज अगर किसी भी सिंगर का जो है वो कॉन्सर्ट होता है तो ये हमारी खुशी का बाइस है। जब मैंने जो है वो बीकन यूनिवर्सिटी में जो है वो पूछा लड़कियों से, बच्चियों से कि आपके लिए क्या इंटरटेनमेंट है, क्या आप इंटरटेनमेंट, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप प्रोग्राम्स देखते हैं, तो मुझे सिंपल एक ही बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास इंटरटेनमेंट सिर्फ इस वक्त जो है वो सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स हैं, अदरवाइज़ हमारे पास कोई इंटरटेनमेंट मौजूद नहीं है। आप बताएं हम क्या इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि बच्चे चाहते हैं, आज की यंग जनरेशन चाहती है कि हम उन्हें गाइड करें, हम उन्हें बताएं कि इंटरटेनमेंट क्या होती है। तो हम जो है वो अपने कल्चर और अपनी सकाफत, अपने इवेंट्स को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए हमें, और बाकी हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम कर ही रही हैं। तो शहजाद साहब हमारे जो है वो ज़ाहिर है शोबिस रिपोर्टर भी हैं, साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारी तमाम तर जो कम्युनिटी है, जैसे हमारे ये जर्नलिस्ट हैं, उनको भी जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देते रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अब बसंत के हवाले से हो या रंगों के हवाले से हो, बात शहजाद साहब से करते हैं। जी शहजाद साहब बताइएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर बसंत की बात करें तो डॉक्टर साहब ये बसंत जो है ये मौसम जो था ये फरवरी के महीने में बसंत मनाई जाती थी और ये नवीद होती थी मौसम के तब्दीली की, यही मौसम जो बहार के मौसम की। ठीक है, सर्दियों का जब मौसम खत्म हो रहा होता था और बहार का मौसम जब शुरू होता था, जब फूल खिलते थे, नई कोंपलें खिलती थी, ठीक है, नई सरसों फूटती थी, तो ये नवीद होती थी इसकी कि जब मौसम चेंज हो रहा है और बहार की आमद है। अगर इसकी हिस्ट्री पर बात करें तो ये तकरीबन इसकी कई सौ साल पुरानी हिस्ट्री है और इसको बकायदा जो है वो पजीराई तब मिली जब राजा रंजीत सिंह ने भी इसको बकायदा तौर पर मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक वक्त था कि जब ये साझा पंजाब था, चढ़दा और लहंदा पंजाब जब इकट्ठा होता था तो उधर अमृतसर, गुरदासपुर में और उधर लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, इन सारे शहरों में बसंती रंग जो थे आम नजर आते थे। लोग बढ़ चढ़ कर इन त्योहारों में हिस्सा लेते थे और ये कोई एक दिन का त्यौहार नहीं था, ये फरवरी के शुरू होते ही तकरीबन फरवरी के एंड तक ये पूरा महीना जारी रहता था। और जब क़याम पाकिस्तान के बाद की अगर बात करें तो ये एक बकायदा फेस्टिवल का जो है रूप धारता जा रहा था और ये बड़ा हेल्दी फेस्टिवल था। अगर लाहौर की बात करें, अंदरून लाहौर की अगर आप सकाफत को देखें, अंदरून लाहौर को देखें, तो डॉक्टर साहब कोई एक वक्त होता था कि अगर हम 90 की दहाई से पहले की बात करें तो अंदरून लाहौर का कोई गली, कोई कूचा ऐसा नहीं होता था जहाँ गुड्डियों पतंगों की बहारें नजर नहीं आती थी, जहाँ डोरे नहीं लग रही होती थी। ठीक है, आजकल का जो पुराना मंटो पार्क और आज का आज़ादी पार्क जो है ये जो मीनार पाकिस्तान गिर्द गिर्द, यहाँ पर डोरों की और पतंगों की बकायदा पूरी मार्केटें होती थी। ठीक है, हर गली में डोरे लगा रहे हैं और वो सूती डोर होती थी।
ठीक है, धागे की बनी हुई, अच्छा। उसको नुकसान नहीं होता था उसका कोई, अच्छा। ठीक है। ये तो बाद में, ये 2000 की अगर बाद में बात करें तो जिस तरह हमारे बहुत सारे फेस्टिवल, हमारे बहुत सारी सकाफत, हमारे बहुत सारे मेले ठेले, ठीक है, जो वार एंड टेररिस्ट की जंगों की नजर हो गए, और इसी तरह बसंत की जो त्यौहार है वो भी कुछ ऐसे चंद जो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, जो गंदे अनासर इसमें शामिल हो गए, उसकी नजर हो गया। ये एक बड़ा हेल्दी त्यौहार था, ठीक है, जो इसको खूनी त्यौहार में बदल दिया गया। सही। जब इसमें ये तंदी वाली डोर इसमें शामिल की गई, अच्छा। जो गर्दनें काट देती, जो कटती नहीं थी, जो टूटती नहीं थी, बकायदा अगर किसी चीज से टकराती तो बकायदा वो चीज कट जाती, लेकिन वो डोर नहीं टूटती। अच्छा। ठीक है, ये चीज जब इसमें शामिल हुई तो तब से ये त्यौहार जो है वो दम तोड़ता चला गया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज भी इस त्यौहार को जिंदा कर सकती है। डॉक्टर साहब देखे, अच्छा, आप बता रहे हैं कि उस वक्त जो डोर इस्तेमाल होती थी वो धागे की थी, वो मतलब सिंपल उससे तो धागे से तो कोई नुकसान नहीं था, कोई नुकसान नहीं तो होता फिर था। ये धागे की डोर यकदम शीशा डोर में 2000 और के बाद तंदी की वाली बात। डोर में क्यों तब्दील हुई? डॉक्टर साहब ये 2000 के बाद की बात। देखिए, मैच होते थे, बकायदा बो काटे की सदाएं गूंजती थी। हाँ। लाहौर की छतों के ऊपर एक मेले का समा होता था पूरा महीना। ये सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं बल्कि पूरी फरवरी, पूरा महीना। एक दिन गुजरांवाला में हो गया, ठीक है ना, कसूर में हो गया, फैसलाबाद में हो गया, लाहौर में पूरा महीना मैं तो वो बता रही हूँ ना कि मुझे तो ये इतना इवेंट याद नहीं, लेकिन मुझे लाहौर ये का याद है आसमान जो था, प्रिया परवेज का एक गाना चलता था और उसमें मैंने ये इवेंट देखा था। आपसे पहले की बात है, ये देखें, लाहौर का जो आसमान था वो रंग बिरंगी पतंगों से रंगा होता था। ठीक है, अंदरून लाहौर में छतों के ऊपर बो काटा की सदाएं गूंजती होती थी। ठीक है, बकायदा खाने पक रहे होते थे, बारबेक्यू, मिठाइयाँ, इस तरह के एक बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता जा रहा था। अच्छा, मतलब लोगों के मिलने जुलने का एक मतलब जरिया था ये त्यौहार। मिलने जुलने का और खुशी का एक जरिया बनता जा रहा था। डॉक्टर साहब, इसमें गंदगी तब शामिल हुई, इसमें जब कुछ ऐसे अनासर शामिल हो गए, इसके बकायदा मैच होने शुरू हो गए। जी, कि मेरी पतंग जाएगी और ऊपर उसका बकायदा वो मैच पड़ेगा, ठीक है ना, उसका पेच लड़ेगा और किसकी पतंग कटती है। ठीक है, तो एक दूसरे की पतंग को काटने के चक्कर में ऐसी डोर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया जो धाती थी। अच्छा। जो कटती नहीं थी, दूसरी डोरों को काट देती, ठीक है ना। वो जब डोर इसमें शामिल हुई तो ये त्यौहार जो था वो खूनी त्यौहार में शुरू हो गया, बदलना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब देखें, अगर 2000 पहले की बात करें, ठीक है, तो चोलस्तान जीप रैली किसने देखी थी? आज वो भी एक बड़ा हेल्दी फेस्टिवल बन चुका है। ठीक है, फरवरी में वो भी होता है चोलस्तान। आज पूरी दुनिया से चोलस्तान जीप रैली देखने के लिए लोग आते हैं, और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो चुका है। ठीक है, वो सहरा में मनाया जा रहा है। 25 साल लग गए हैं इसको, इस दफा 25वीं जीप रैली हो रही है। ठीक है, 25 साल लग गए आपको एक बड़ा हेल्दी फेस्टिवल बनाते हुए। अगर आप चाहते, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस त्यौहार को जिंदा करना है, हम इसके तो बिल्कुल मुखालफ है। ये तो शहर में तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी नुकसान होते हैं, बहुत सारी जानें जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे, अगर बाइक पे कोई बंदा सफर कर रहा है या पैदल सफर कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये देखिए, इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये दाती डोर का इस्तेमाल को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है, और उसके ऊपर बाकायदा कानून नाफज करने वाले दायरे जो है वो बड़े सरगर्म है। पुलिस जो है वो बड़ी सरगर्म है। इस वक्त किसी को पतंग उड़ाने की, पतंग नहीं उड़ाता, अभी इसी वक्त पतंग उड़ाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते, हमारा ये अगर प्रोग्राम जिस तरह कल्चर को फरोग देने के लिए गवर्नमेंट इसको बहुत सारे प्रोग्राम करती रहती है, म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ऐसी जगह मुख्तस कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप बाटापुर की दूसरी तरफ चले जाएं, रावी के किनारे चले जाएं, ठीक है, वहां पर ऐसे को थोड़ा सा मुख्तस कर देनी चाहिए, जहां पर कैंपिंग नाइट हो, साथ बसंत का मेला हो, और जहां पे धागे की वही वाली डोर हो, जहां पर ये इसके जो पैरामीटर्स तय होने चाहिए। मतलब इसको इवेंट या फेस्टिवल आपने मनाना ही है, चोलस्तान के जंगल में, सहरा में जाके जीप रैली हो सकती है। लाहौर के दरियाए रावी के किनारे 40 किलोमीटर का ट्रैक बना के जीप रैली हो सकती है। ठीक है, एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है। और अब तो हमारा जो चोलस्तान का जीप रैली वो तो एक फेस्टिवल का रूप धार चुका है, और पूरी दुनिया से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और अब उसके साथ कल्चरल शो भी होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर ये चीजें हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट खत्म हो चुकी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, अगर ये चीजें हो सकती हैं तो फिर डॉक्टर साहब बसंत भी जिंदा हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि रावी के किनारे, जिस तरह रोडा जिधर बन रहा है, ठीक है, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके साथ मिलके, या दूसरे ये बाटापुर से आगे चले जाएं, बॉर्डर की तरफ चले जाएं, तो बड़े खुले खेत हैं, बड़े खुले लहलहाते हुए खेत हैं, खुली मैदानी जगह है।
वहां पर जाके कैंपिंग नाइट हो सकती है, कोई ऐसी जगह मुकाम मुख्तस किया जा सकता है, बड़ा खूबसूरत इवेंट हो सकता है जहां बसंत का जो त्योहार भी मनाया जा सकता है, इसको जिंदा भी किया जा सकता है, अपने कल्चर को भी मनाया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह के कैंपिंग नाइट भी हो सकती है, ये बड़ा खूबसूरत त्योहार भी मिल सकता है। लेकिन शहर में ये बिल्कुल चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर शहर में नहीं होनी चाहिए, इस चीज का तो कोई बंदा इस चीज का हामी हो ही नहीं सकता कि ये शहर में, लाहौर में ये खूनी खेल को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी जाए, बेशक एक दिन के लिए खोले, ठीक है? ये नहीं हो सकता क्योंकि शहर में ये चीजें रुक नहीं सकती। अच्छा देखिए, हर दौर में हर ट्रेंड और सकाफत ने जो है वो अपने डेरे डाले हुए थे, और हर दौर के लोग अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, जो नवाब लोग हुआ करते थे ना, वो शिकार करते थे। शिकार जो है वो जानवरों का होता था, शेर का शिकार होता था। अच्छा, ऐसे जानवरों का शिकार नहीं होता था जो नायाब होते थे, शिकार उनका किया जाता था जो खूनख्वार होते थे या मतलब इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले होते थे। इस तरह के मेरी एक जो है वो मुलाकात हुई पिछले दिनों एक शख्सियत से, उनके दादा जो है वो खून जो ये इंसानी खून पीने वाले शेरों का शिकार करते थे, और उनके घर में जो है वो उन शेरों के जो है वो आज तक उनकी खाल और उनका वो सब कुछ जो है वो मौजूद है, उनकी तलवारें और ये सारा कुछ जो है वो बड़े फेमस जो है वो पाकिस्तान की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो है वो शिकारी थे उनको कहा जाता था। तो बड़े बड़े लोग जो उनके साथ शिकार खेला करते थे उस टाइम पर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए ना, हर बंदे ने अपनी अपनी कोई ना कोई इंटरटेनमेंट रखी हुई है। आप यकीन करें, हम काम कर करके इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हमारे पास इंटरटेनमेंट के ज़राए ख़त्म हो चुके हैं। अब ये हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल सिद्धार्थ साहब आप ठीक कह रहे हैं, कि कुछ लड़कियों के लिए अलग फेस्टिवल का इंतज़ाम किया जाए, कोई रंग बिरंगी, जहाँ वो कपड़े पहन के आ सकें, जहाँ वो एंजॉय कर सके, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो वो जा सके। लड़कों के लिए अलग हो, फैमिलीज के लिए अलग हो, और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज है कितनी है? कुछ भी नहीं है, कितनी गई नहीं है, ठीक है? अगर 2000 के पहले की बात करें तो बहुत सारे मेले भी होते थे देहातों में, अगर चले जाए बहुत सारे मेले ठेले लगते थे, वहां तक पहुंचना, जो कल्चर है हमारा वो दम तोड़ता जा रहा है। हम उस पर टिकट लगा देते हैं, तो टिकट लगा के तो जो है वो इंटरटेनमेंट नहीं ना होती, अब पैसे देके कौन मैं वही बता रहा हूँ कि वो कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो हमारी दम तोड़ती जा रही हैं, बहुत सारे थोड़े से रह गए हैं, लेकिन ये चीज़ों को जिंदा करने के लिए हमारे इदारे मौजूद हैं। उनको इस तरफ भी सोचना चाहिए कि अगर आप बसंत का त्यौहार करवाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा साइड पे जाके लाहौर के बाहर या दूसरे शहर, लग रहा है आशिज़ाद साहब ने ना ये जो प्रोग्राम स्पेशली जो है वो तरतीब दिया ना हमारे साथ, ये चाह रहे हैं बस इंटरटेनमेंट चाहिए। ये हम इंटरटेनमेंट आपको जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है? जिस तरह की आपकी लाइफ हो गई है, ठीक है? अब 60 साल से ऊपर तो लाइफ ही नहीं रह गई, इंटरटेनमेंट ही खत्म हो गई, इंटरटेनमेंट ही खत्म होती जा रही है। अगर आप पीछे चले जाए तो बहुत लंबी लंबी उम्रें भी होती थी और बड़े हेल्दी एक्टिविटीज भी होती थी। अब कबड्डी के मैच आपका कितने कहाँ होते हैं देहातों में? नहीं है कोई, कबड्डी के मैच होते हैं देहाती में। कबड्डी हमारा बड़ा खूबसूरत खेल था, वो अब थोड़ी सी टीम रह गई है, चंद शहरों में, चंद गांव में खेली जाती है, ठीक है? उसके बाद वॉलीबॉल के मैच होते थे, ठीक है? ये चीजें बिल्कुल खत्म होती जा रही है, वॉलीबॉल, बहुत सारे देहातों में चीजें, ठीक है? ये कल्चरल गेमें जो थी हमारी, ये तो दम तोड़ती जा रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि गांव में मेले लगते थे, डॉक्टर साहब मेले लगते थे, वहां पर दुकानें लगती थी, खैमा नुमा दुकानें होती थी। अब वही चीजें शहर में उन्होंने कन्वर्ट कर दी, वहां उन्होंने बड़ा महदूद सा कर दिया कि जी 100 स्टॉल लगा दिए छोटे छोटे। ये स्टॉल जो थे ये इनकी बड़ी तादाद होती थी, 200-200 दुकानें लगती थी। किसी अगर देहात में चले जाए, वहाँ मेला लगा हुआ, आज फलां देहात में मेला लगा हुआ, ये पंजाब की शान होते थे। ये भंगड़े, ये गिद्दे, ठीक है ना, ये कबड्डी के मैच, ठीक है, ये कल्चरल गेम्स, ये हमारी पंजाब की शानें होती थी। तो ये चीजें, और इसी के साथ बसंत जो थी ये भी पंजाब की शान होती थी, ये कोई खूनी खेल नहीं था। खूनी खेल अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने, जैसे हमारे पास यहाँ पर अलहमरा हॉल मौजूद है और सारे हॉल्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप बुला के जब एक इंसान को इंटरटेनमेंट देते हैं ना, उसका माइंड जो है वो स्पेसिफिक सिर्फ उस सराउंड के गिर्दी घूमता है, वो सिर्फ देख सकता है, उसको ट्राई नहीं कर सकता। कितने लोग ओपन एयर जो है वो इसका एहतमाम किया जाए। वैसे कितने लोग अगर देखें आर्ट काउंसिल का कितने आ जाएंगे, सही कह रहे हैं, लाहौर आर्ट काउंसिल का अदारा अगर कोई फेस्टिवल लगाता है अलहमरा में या बागे जना में, तो वहाँ कितने आएंगे? चंद लोग, ठीक है, बड़ी हजारों में आ जाएंगे। लेकिन ये मेले तो लाखों लोग देखते थे बकायदा, और ये सिर्फ ये पाकिस्तानी पंजाब नहीं, ये दूसरे पंजाब में, ये इंडियन जब आप इंटरटेनमेंट खत्म करेंगे, जब आप जो है सकाफत को खत्म करेंगे, जब आप लोगों को जो है इंटरटेनमेंट फराहम नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर 14 फरवरी ही मनाई जाएगी, फिर यहाँ पे वैलेंटाइन डे ही मनाया जाएगा, फिर आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। हमारे बच्चे और बच्चियां जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं इस वक्त, जो अभी जो है वो 15 साल से लेके और 20 साल तक के जो है वो बच्चे हैं, यकीन करें इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ किसी दूसरे का सहारा तलाश कर रहे हैं।
गलत एंटरटेनमेंट चल रही है आपके पाकिस्तान में। आपने जो बात कर रहे थे शुरू में प्रोग्राम के, देखे कि डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछा कि आपकी एंटरटेनमेंट क्या होना चाहिए, म्यूजिकल फेस्टिवल, बस ठीक है, बस वहां डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये उनकी एंटरटेनमेंट है। लेकिन इन बच्चों ने वो चीजें देखी नहीं है, इन बच्चों ने वो चीजें देखी नहीं है। आप 25 साल से पीछे चले जाए, वो जनरेशन ही नहीं, वो जनरेशन ही वो हमारी जनरेशन है जिन्होंने ये सारी चीजें देखी है। ठीक है, जो नई जनरेशन है उन्होंने तो ये चीजें देखी नहीं, उन्होंने तो मेले ठेले देखे ही नहीं है, उन्होंने ये बसंत के फेस्टिवल तो देखे ही नहीं है। ठीक है, बसंत के फेस्टिवल तो इनके सामने दम तोड़ चुका है। आज तो पतंग उड़ाना जुर्म समझा जाता है, और जुर्म होना भी चाहिए। जिस तरह की ये पतंगबाजी हो रही है ये तो खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा कल्चर था उसको जरूर जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई एक कैंपिंग नाइट, देखिए हमने जंग जीती, हमने ये जो है वो जंग जीती, तो हमने तराने उसमें जो है वो लगाए। वो उस वक्त जो है वो मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज जो है वो तराने जब लगते थे तो वो रूह गरमाते थे, और वो जो है वो हमारे जो एक क्या कहते हैं एक सोल्जर्स थे, वो ये सुनकर जो है वो उनकी रूह ताज़ा होती थी। आज हमारे पास हैं ऐसे लोग, फिजिकल गेम ही नहीं रहेगी कोई भी। ठीक है, अगर आप बड़ी आदत को क्रिकेट खेल लेगा, और क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड खत्म होती जा रही है। सही कह रहे हैं। गली मोहल्लों में तो खेली नहीं जाती। ठीक है, ग्राउंड जो है वो खत्म होती जा रही है, पार्क भी खत्म होते जा रहे हैं। लाहौर का आप जो अगर एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो पहले कभी इस तरह था लाहौर, पहले तो ये लाहौर आज के मौसम में पतंगों से रंगा होता था। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर स्मोक छाई होती है। ये सारी चीजें, ये बदलाव आ चुका है, एनवायरमेंट सारा तब्दील हो चुका है। और अगर आप बच्चों को देखें, देसी घी की बात कर रही हैं, पहले तो लोग हमसे 40-40 किलोमीटर जो है पैदल चला करते थे। सही। ठीक है, और आज देखें, आज 2 किलोमीटर नहीं को चल सकता। ठीक है, तो कहाँ रहेगी लाइफ तो सारी जो है ना वो डिस्टर्ब होती जा रही है। और सारी जो आज का बच्चा ना साइकिलिंग कर रहा है, आज का बच्चा ना पैदल चल रहा है, जैसे ही घर से निकलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, जब वो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग से उतर के फिर गाड़ी में चले जाते हैं। साइकिलिंग भी करता है तो वो भी फैशन के लिए, वो भी फैशन के लिए। ठीक है, साइकिलिंग भी हमारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, और वो भी सिर्फ फैशन की हद तक रह गई है कि बस एक सोसाइटी में थोड़ा सा घूम फिर लिया, चक्कर लगा लिया, ये बड़ी एक्सरसाइज। जब तक आप अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके हाथ पाँव टांगे ये सब चीजें जो है वो चलेंगी नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने जो है वो वर्किंग में बनाया है। क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल डैमेज करने में बैठे रहेंगे और मोबाइल फोन के साथ जब अपना टाइम स्पेंड करते रहेंगे, या कुछ और चीज़ें जो है वो आपके साथ चलती रहेंगी, तो आप बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिर डिप्रेस रहना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो बढ़ रही है, मैं हमेशा मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चे, मैं असल में ज़्यादातर नौजवानों की डॉक्टर हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे पास तो जो है ना वो यंगस्टर्स आते हैं ज़्यादा, वो लड़के लड़कियाँ आते हैं जो इस टाइम एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। रिलेशनशिप तो एक अलग सेटअप है ना जो मैं डील करती हूँ, लेकिन ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त फॉर्मी बन चुके हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म है, जो बिल्कुल ही अपने आप को जो है वो नेचर से दूर कर लिया है, कोई हमारे पास इवेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके बाद जो है वो फिर डिप्रेशन ही बचता है, और इन्होंने डिप्रेशन ले रखा है। उसके बाद इंटरटेनमेंट ये बचती है कि कोई दूसरा शख्स मिल जाए और हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें, और फिर वो हमें धोखा दे के निकल जाए, और फिर हम एक जहनी मरीज बन जाए। ये आपके पाकिस्तान में जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है, और ये मामला हो रहे हैं। बहरहाल शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ, और मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपने प्रोग्राम के थ्रू ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। यंगस्टर्स के लिए जो है वो हमारे कल्चर और सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकें, और उनकी इंटरटेनमेंट के जो है वो ज़राए भी उनको मिल सकें, मुख्तलिफ हमारे सकाफ़ती खाने भी वहाँ पर मौजूद हों, ताकि हमारी आज की नौजवान नस्ल जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो। और अगर बसंत के फेस्टिवल को हम एहतियात के साथ दोबारा ला सकते हैं तो इस पर भी जो है वो आप सोच सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं।